Hello dear students, hope you all will be fine and all will be studying at home. We are meeting online after very long time. Up till now, we have covered only first chapter and today we will study second chapter of grade 10 and that is about head and body section. As I told you in my first video that I will show this slide before starting each and every chapter. So here I am showing this slide and up till now what we have covered first chapter and that is introduction to HTML. Today we are going to start our second chapter and that is about head and body sections. As we are meeting after very long time, we will do quick revision of chapter 1. And over here, I would also like to suggest that if you are not done with the previous video of chapter 1 introduction to HTML, then please pause this video and first go through the video of chapter number 1. You can also find the link of the first chapter in the description box. So let's revise chapter 1 introduction to HTML. In chapter 1, we had started our journey with different definitions such as computer network that is connecting computers, internet that is network of networks, world wide web, browser through which we can open our web page and that is hyperlink, and finally that is website. Second point was about basics of HTML, that is hypertext markup language, different HTML element, text editors such as gedit and skit, and extensions such as HTML and HTML. We had also studied HTML page structure. In that we had studied HTML element, head element and body element. We had also studied different tags. Around 26 tags had been studied in the chapter number 1, and those all tags we again we will again revise those all 26 tags, that is starting with the HTML, then after head element, then after body element, title that defines the title of the web page and it will not be the part of the content of the page. H1 to H6, that is the different heading element. Then after, this is for the paragraph tag, this is for the line break, this defines the pre-formatted text. B again it will use for to make the text bold, this is used for the underline, this is for the italic, this tag is used for the strike through, this is for the typewriter font. You can also see the effect of these all tags over here too. Small tag can be used to make the font size one smaller than the rest of the text surrounding it, and this is for the big, and this big tag is used to make our font size one bigger than the rest of the text surrounding it. Then after we had also studied the superscript. Over here you can see the effect of superscript. Similarly, that is for the subscript. This is acronym, that is if we revise, if we move the cursor on the short form, suppose for an example HTML, then it will show the full form of that is HTML, that is hypertext markup language, that I have shown you in the practical session of chapter 1. This is used for this defining special term. This is for the double inverted comma, and this is anchor tag that is very useful for the hyperlink. So all these
tags had been explained by me during the theory session, and how to use this all tags that has been explained by me in practical session. And in last, the chapter ended with the question that I told you to write down all the MCQs in one 200 pages full-scape notebook. So this was all about the quick revision of chapter number 1. Now we will start our second chapter, and name of the chapter is head and body section. For the simplicity, I have divided the chapter in two parts, that is head section, and second one is body section. In head section, we will study different tags such as meta tag, base tag, style tag, link and script tag. Under the meta tag, we will also study the different attributes such as description, keywords, author and HTTP equi. Under body section, again we will see the different attributes like background, bg color, text color, active link, visited link, horizontal line, or we can also see the horizontal rule, formatting characters such as the physical style tag, logical style tag, font and base font, and finally the chapter will uh, end up with the spatial character. So let us start with the head section. This is HTML page structure that we have already seen in chapter number 1. Uh, this this is head element and this is body element. यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में जो हम पढ़ने वाले हैं that is about this head element and about this body element के head element में कौन कौन से tags as well as attribute use कर सकते हैं. Similarly in body element which are the tags and attributes can be used, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. So let's start. That is about the head section. The head section of the HTML documents provides necessary information about the HTML document. सही है कि जो भी हम head element में लिखेंगे that is over here, वो HTML डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देगा, जो चीज़ पहले पॉइंट में लिखी गई है. सेकंड पॉइंट इज द कंटेंट ऑफ द हेड सेक्शन इज इंक्लूडेड विद इन द हेड एलिमेंट. अब जो हेड सेक्शन का कंटेंट होगा वो हेड एलिमेंट में ही लिखा जाएगा, उसमें कोई भी नई बात नहीं बोलेगी कि हेड सेक्शन का जो भी यहाँ पे वो हेड एलिमेंट के बीच में ही लिखा जाएगा. द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हेड टेक्स्ट एंड कंटेंट बिटवीन दिस इज नोन एज अ हेड एलिमेंट. इसका मीनिंग क्या कि जो भी चीज़ आप इनके बीच में लिखेंगे और दिस आर द हेड टैग्स और जो भी उसका कंटेंट है ये पूरा क्या कहा जाएगा, हेड एलिमेंट. उसमें और एक चीज़ है टाइटल that also has been covered in chapter number 1. So let us look over here, that is title. Title will not be displayed as a content of the web page. Okay, so जो भी यहाँ पे हेड सेक्शन में टाइटल के बीच में जो लिखेंगे वो हमारा जो वेब पेज है उसका मेन कंटेंट नहीं होगा. तो फिर क्या कहाँ पे आएगा देखते हैं. It is displayed as a title of the browser window that shows the web page. What does it mean? For an example, मान लो कि मैं यहाँ पे ये हमारी एबी स्कूल की वेबसाइट है, तो टाइटल के बीच में जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और ये उसको क्या बोला जाएगा, that is the main content of the web page and this is the title. कि whatever you are writing in head element in between title tag, over here you can see that title. Okay, और क्या लिखा है, it is to be noted that if a title is not specified, most browser display the URL path or the file name. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सर हम टाइटल अगर नहीं लिखते हैं तो क्या होता है. तो नॉर्मली जहाँ पे भी आपने फाइल सेव की होगी तो वो
जो पाथ होगा वो या फाइल का जो भी आपने नाम रखा होगा वो ही वहां पे दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि टाइटल नहीं लिखा होगा तो क्या दिखाई देता है कि मेमोरी इज एट अ ग्लांस। डन। Next is the title tag must have its closing pair. Over here you can see this is opening and this is closing pair. Failing to use the closing title tag, the whole content will be considered as title and it may be possible that the HTML document may not be loaded into the browser window. So this point क्या कह रहा है कि अगर आप टाइटल में ओपनिंग टैग लिखो और क्लोजिंग टैग नहीं लिखो तो क्या होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि वो पूरे पेज को एज ए टाइटल कंसिडर करेगा या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो पेज को लोड होने ही नहीं देगा। जब भी आप HTML में प्रोग्रामिंग करोगे और जब आप कोई भी ब्राउज़र में उसको ओपन करने जाओगे तो वो पेज लोड नहीं होगा, वो ऐसा पॉइंट बोल रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट दैट इज द हेड सेक्शन ऑल्सो कंटेन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट एंड द HTML डॉक्यूमेंट। उसके अलावा भी हेड सेक्शन में और कई सारी चीज़ें आप कह सकते हैं और वो क्या है। The tag that provides the additional information. The tag that is provide additional information is known as meta tag, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो टाइटल तो एक जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसे कई सारे टैग जो है जो आप यहाँ पे लिख के उसका यूज कर सकते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ये दूसरी तरीके से हमें कहीं ना कहीं यूज में आते होंगे। तो चलो देखते हैं वो कैसे यूज में आते हैं। द मेटा टैग्स आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे तो हमने देखा कि मेटा टैग, अब मेटा टैग क्या है उससे क्या होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। द मेटा टैग्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन विजुअली रिलेवेंट टू ब्राउजर्स एंड सर्च इंजिन्स। Addition of appropriate meta tags describes the nature of the web page precisely and make it easy for the search engine to search the web page efficiently. तो यहाँ पे हम आगे डिटेल में देखने ही वाले हैं, फिर भी मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेटा टैग के लिए अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मेटा टैग में जो भी कंटेंट हम लिखेंगे उसकी वजह से ब्राउज़र में और सर्च इंजन हमने जो भी वेब पेज बनाया है उसको सर्च करके इजी तरीके से जिसने भी सर्च किया हो उसको उसके सामने रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकता है। और ऐसा काम है मेटा टैग का। अगेन बोल रहा हूँ कि मेटा टैग में जो भी एट्रीब्यूट हम यूज करेंगे उसके जरिए सर्च इंजन जब कोई मान लो यूजर सर्च करता है और उसका कंटेंट सर्च इंजन को ढूंढने के बाद जो भी सर्च कर रहे हैं उसके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेटा टैग अगर आपने लिखा होगा तो सर्च इंजन को वो कंटेंट ढूंढने में आसानी रहेगी। सो मेटा टैग उसके लिए यूज होता है। Now we will see what are the attributes that has been used with the meta tags. So first is description. Most search engines will display the description when they put the results of a search to the users. In absence of search description, the search engine will display only first few words. What does it mean? Suppose I am making one web page and in that in head element I am also using this meta tag with the description. And over here I am writing about rainbow and its colors. जो भी मेरा एक टॉपिक है उसका मैंने नाम कंटेंट का जो नाम है वो नाम कंटेंट में से थोड़ा मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड को बोलूँगा कि मैंने एक वेब पेज बनाया है तो मेरा फ्रेंड जाहिर सी बात है कि वो चेक करेगा। तो अगर मैंने कहा कि उस वो मुझे अगेन 100% ही विल आस्क के भाई किसके ऊपर तुमने वेब पेज बनाया, तो मैं अगर बोलूँगा कि रेनबो और उसके कलर जो भी है उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, तो वेन एवर ही विल सर्च इन गूगल लाइक कि भाई अबाउट रेनबो एंड इट्स कलर, तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा ये, तो जब भी वो सर्च करेगा तो सर्च इंजन क्या करेगा उस चीज़ को तुरंत ही पकड़ लेगा और मेरा फ्रेंड जो सर्च कर रहा है उसके सामने रख सकेगा।
और अगर आप ये डिस्क्रिप्शन में अगर ऐसा कंटेंट नहीं लिख रहे हो तो क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ सच डिस्क्रिप्शन द सर्च इंजन विल डिस्प्ले ओनली फर्स्ट few words। मान लो कि अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ तो वेबसाइट के जो भी मैंने जब भी बॉडी सेक्शन में या मैंने जो भी कुछ लिखा होगा पैराग्राफ में, तो उसके बेसिस पे ही वो सर्च करके रिजल्ट देगा, नहीं कि इसके बेसिस पे। डन। ऐसा ही डिस्क्रिप्शन जैसा ही दूसरा जो है दैट इज कीवर्ड्स। Keywords provided in this tag will be used by the search engine. Again, similarly, this is also used by the search engine. Names of important characteristics, objective of the web page, and the important topics may be enlisted as a keyword. अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिमिलरली नेम मेटा, उसके बाद नेम, कीवर्ड्स आप दिख रहे हैं, कंटेंट जैसे ही नाम, जैसे कि कोई अगर रेनबो लिखे तो भी मेरा कंटेंट उसके सामने अच्छी तरह मीन्स के पहुँच जाना चाहिए। सिमिलरली जो सर्च इंजन है वो सर्च करके उसको देना चाहिए, जैसे कि VIBGYOR अगर ऐसा कुछ लिख के कोई भी अगर ना ऐसे कीवर्ड्स जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके लिए अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूँ तो नाउअडेज पीपल आर अपलोडिंग देयर वीडियोस ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब में जब भी आप वीडियो आप अपलोड करते हो तो वहाँ पे वो लोग भी डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें पूछते हैं। जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो उसी टाइम डिस्क्रिप्शन में भी अगर ऐसे ही कुछ डिस्क्राइब कर रहे हो जिसके ज़रिए, या फिर कीवर्ड्स भी वो लोग पूछते हैं कि अगर इस वीडियो जो आप अपलोड कर रहे हो तो उसमें कुछ कीवर्ड्स है, ताकि जब भी कोई दूसरा इंसान या कोई भी इंसान अगर कोई सर्च करे रिलेटेड टू दोज वर्ड्स तो वो उसके सामने इजीली जो आपका वीडियो है उसके सामने आ सके। क्योंकि एक ही टॉपिक के बारे में कई सारे वीडियोस होते हैं, लेकिन अगर मान लो एक बंदे ने डिस्क्रिप्शन में वो पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन या कीवर्ड में वो पर्टिकुलर वर्ड और वो कंटेंट नहीं लिखा और दूसरे ने लिखा, तो जिसने लिखा होगा उसका वीडियो या उसका जो भी कंटेंट वेब पेज है तो उसके सामने जो गूगल का जो भी सर्च इंजन है, गूगल या कोई भी दूसरा भी इंजन जो होगा सर्च इंजन, वो पहले उसको ढूंढ के जो जिसने भी सर्च किया उसके सामने वो रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसा ही जो थर्ड वन इज दैट इज द ऑथर। तो मेटा टैग एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर ऑफ द वेब पेज। मान लो कि मैंने वेब पेज बनाया है, अगर उसमें मैं मेरा नाम लिखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा है दैट इज MK गांधी, तो अगर मान लो कोई जो है वो ऑथर के नाम के हिसाब से सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर, तो उसके नाम के हिसाब से अगर आपने मेटा टैग के साथ ये एट्रीब्यूट अगर यूज किया है तो अगेन सर्च इंजन वो ढूंढ के जिसने भी सर्च किया उसके सामने वो रिप्रेजेंट कर सकता है। और ऐसे ही दूसरे भी टैग है दैट इज there are some meta tags that tell the web page to load a specific URL after some seconds, or tags telling it that a certain web page should not be cached. The following example refers the web page after every 5 seconds. इसका मीनिंग क्या कि अगर मान लो कि आपने हेड, देखो जो भी हम बात कर रहे हैं वो माइंड में रखना कि हम ओनली हेड एलिमेंट में यूज होने वाले टैग और एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मीनिंग जब भी आप ये थियोरी सेशन कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिकल सेशन में जाएंगे तब हम ये सारे टैग यूज करने वाले हैं। तो आपके माइंड में होना चाहिए कि यस सर, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन आपने बोला था, सिमिलरली मेटा टैग कीवर्ड आपने बोला था, सिमिलरली मेटा टैग ऑथर वाला सर ने बोला था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मेटा टैग HTTP इक्विवेलेंट। अब इससे क्या होगा कि अगर मान लो कि यहाँ पे HTTP इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रिफ्रेश लिखते हैं और यहाँ पे कंटेंट में क्या लिखते हैं 5, अगर मान लो आप हेड एलिमेंट में ये कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर रहे हैं तो जो भी आपने वेब पेज बनाया होगा तो वो हर 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश होता है। अब इसका अगर मैं एग्जांपल, तो मान लो कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है, अब मुझे मेरे वेबसाइट के ऊपर दिखाना है कि हर रोज कितने लोग मेरी वेबसाइट को देखते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वहां पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन अपडेट भी रखना पड़ेगा। तो अगर मैं कुछ ऐसा रखूँ कि जब भी 5 या 10 या एट द एंड ऑफ द डे जब भी एक बार रिफ्रेश होके जो नंबर ऑफ यूजर्स है वो आपके सामने दिखाई देने चाहिए, तो तब जाके ऐसा कोई मेटा टैग जो है जो HTTP रिफ्रेश करके है, जो अपने जो भी पेज है उसको रिफ्रेश करके ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख सकता है। दूसरी चीज ऐसे भी है कि फॉलोइंग एग्जांपल रिफ्रेशेस द कंटेंट ऑफ द गिवन URL एवरी 5 सेकंड। इसका मीनिंग क्या कि अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे
मैंने एक वेब पेज बनाया है, उसमें ये मेटा उसके बाद http इक्विवेलेंट रिफ्रेश लिखा है, उसके बाद 5 सेकंड के बाद URL लिखा है। तो 5 सेकंड के बाद वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, http test.com। अगर मैं यहाँ पे google.com लिखूँ तो क्या होगा कि मैंने जो वेब पेज बनाया है वो 5 सेकंड के बाद अगेन वो कहाँ पे जंप कर देगा, जो भी मैं यहाँ पे URL लिखूंगा। URL का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। So up till now what we have seen the meta tag, and in meta tag we have studied that is description, keywords, author and HTTP equivalent. So in meta tag we have covered description, keyword, author and HTTP equivalent. Now we will start with the base tag. Over here we can see base text, style tag, link and that is script tag. ये चारों जो टैग है वो कहाँ पे यूज हो सकते हैं, इन हेड एलिमेंट। वन बाय वन वी विल सी हाउ we can use these tags in head element. The first one is base. It defines a default address or a default target for all links on a page. यहाँ पे जैसे कि लिखा है बेस href और उसके बाद क्या लिखा है, एक पाथ दिया गया है। तो उसके लिए अगर एग्जाम्पल दो, मान लो कि मैं एक वेब पेज बनाना चाहता हूँ, उस पे मुझे 4 से 5 अगर मान लो इमेज चाहिए। अगर वो कंटेंट की बात है कि वेब पेज के कंटेंट में मुझे 5 इमेज चाहिए, अगर वो मुझे 5 इमेज लोड करनी है तो बॉडी सेक्शन में मैं इमेज का जो भी टैग होगा वो यूज़ करूँगा, और जहाँ पे भी इमेज है उसका पाथ दूंगा कि भाई इस पाथ से मेरी ये इमेज लेनी है और कंटेंट पे लानी है उसके हिसाब से। अगर मान लो कि जितनी भी मेरी इमेज है मैंने एक फोल्डर में रखी है और सबके पाथ सेम ही है, तो मुझे बॉडी सेक्शन में क्या करना पड़ेगा, 5 बार, अगर 5 इमेज लानी है तो 5 बार वो पाथ लिखना ही पड़ेगा। ऐसा न करना पड़े उसके लिए ये बेस टैग यूज होता है। अगर मैं हेड सेक्शन में एक ही बार बेस लिख दूं, उसके बाद href लिखूं, अगर मैंने जो भी फोल्डर के जहाँ से मुझे वो 5 इमेज लानी है उसका अगर यहाँ पे पाथ दे दूं, तो बॉडी सेक्शन में जब भी मुझे वो 5 इमेज लानी है तो ये उसके लिए पाथ लिखना नहीं पड़ेगा। बॉडी सेक्शन में मैं क्या करूँगा, ओनली आई विल राइट द नेम ऑफ द फाइल। सपोज मुझे पता है कि इमेज के लिए टैग कौन सा है, img, अगर उसके लिए एट्रीब्यूट कौन सा यूज होता है, src, तो इमेज लिखने के बाद src लिखने के बाद सिंपली मैं क्या लिखूंगा, नेम ऑफ द फाइल। तो इससे ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि वी कैन यूज द बेस टैग इन दिस वे। ओके, similarly second thing that is next is style tag. It defines style information for a document. अगर यहाँ की बात करूँ तो सबसे पहले देखो ये चीज़ भी माइंड में रखो कि ये जो हम टैग पढ़ रहे हैं वो किसके लिए टैग है, अगेन हेड एलिमेंट की। इसके सारे टैग हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, हेड एलिमेंट जो है, हेड टैग जो है इसके बीच में ही लिखने वाले हैं। तो सपोज मुझे ऐसा चाहिए कि h1 क्या है, जो आपको पता है हेडिंग एलिमेंट 1, उसमें जो भी अगर मैं लिखूँ उसका कलर रेड होना चाहिए, उसकी फॉन्ट साइज 100 पिक्सल होनी चाहिए। जो भी मैं पैराग्राफ बॉडी एलिमेंट बॉडी सेक्शन में लिखूँगा उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, उसकी फॉन्ट साइज 30 होनी चाहिए। तो ये मैंने पहले ही, अगर मुझे स्टाइल डिफाइंड करनी है तो मैं कहाँ डिफाइंड कर सकता हूँ, मैं हेड एलिमेंट में स्टाइल टैग का यूज़ करके उसके जो h1 में जो भी लिखूंगा, पैराग्राफ में जो भी लिखूंगा, ऐसे मान लो कि आप h2 h3 जिसमें भी लिखने वाले हो वो यहाँ पे लिख के पहले से उसकी स्टाइल प्री डिफाइंड कर सकते हो। दिस इज द यूज ऑफ स्टाइल। अगेन ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन प्रैक्टिकल एज वेल। थर्ड थिंग इज दैट इज लिंक. It defines the relationship between a document and an external resource. इसके लिए भी अगर मान लो कि एग्जांपल, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे लिंक, उसके बाद क्या है, स्टाइल सेट पे क्या आप किसके साथ वो उसके साथ कैसे रिलेशन में है। उसके बाद टाइप, तो कौन से टाइप की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, CSS दैट इज कास्केडिंग स्टाइल सेट, href दैट इज स्टाइल 1.css, मीन्स कि आपने जो भी आपके फाइल का नाम लिखा है। मान लो कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ कि मैं एक वेब पेज बना रहा हूँ और वो वेब पेज में मैंने दूसरे एक
दूसरा एक पेज बनाया है, वो पेज यहाँ पे कॉल करना है। वैसे देखो हाइपरलिंक दैट इज डिफरेंट, मुझे एक पेज के अगर उसके ऊपर क्लिक करके दूसरे पेज के ऊपर जाना है, दैट इज हाइपरलिंक। बट यहाँ पे जो पेज में जो लिखावट है उसका यूज मुझे इस मेरे पेज में करना है, तो उसके लिए ये लिंक आप यूज कर सकते हो। कि जैसे ही आप लिंक लिखोगे, मान लो कि यहाँ पे स्टाइल शीट दे दिया, टाइप कौन सी है, तो टैक्स या CSS जो भी है वो होगा, और ये स्टाइल 1.css। इसका मीनिंग मान लो कि मैंने एक पेज बनाया है, उसमें ये कोड लिखा है जो ऊपर वाला स्टाइल वाला कोड, और उसका नाम दे दिया है क्या है, स्टाइल 1.css। अभी मैं जो दूसरी मेरी फाइल बना रहा हूँ उसका नाम मैंने रखा है style2.html। और अगर मुझे style1.css नाम से फाइल जो मैंने बनाई है फाइल, अगर उसको यहाँ पे लाना है तो मैं उसको ला सकता हूँ, दैट इज href style1.css। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो उस फाइल में जो भी मैंने लिखा हो उसको यहाँ पे यूज कर सकूंगा, और उसका यूज कहाँ पे होगा, बॉडी टैग में। अगर मान लो कि मैं यही चीज हेड टैग में लिख दूं, तो style1.css मीन्स के कास्केडिंग स्टाइल सेट, जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि आप कौन सी टाइप की फाइल यूज कर रहे हो, तो मान लो कि मैंने CSS, जैसे HTML आता है वैसे CSS भी आता है। अभी के लिए फिलहाल आप उतना याद रखो कि जैसे .html करके हम कोई फाइल सेव करते हैं, सिमिलरली .css करके भी कोई फाइल सेव कर सकते हैं, और उसी फाइल का यूज हम हमारी HTML फाइल में करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं ये समझा रहा हूँ। तो अगर मान लो .css के हिसाब से जो भी उसके टैग्स है उसके हिसाब से मैं एक कोड लिख रहा हूँ, और उस कोड का यूज यहाँ पे मुझे करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। और मान लो कि जो CSS में मैंने जो लिखा है, जिसमें हेडर का कलर ये मीन्स के हेडिंग का कलर ये लिखा है, और जो पैराग्राफ में ये सारी चीज़ आनी चाहिए, अगर मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखा है, उसका कॉलिंग लिंक, उस फाइल को लिंक अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मेरे बॉडी सेक्शन में भी जहाँ पे मैं हेडिंग एलिमेंट 1 यूज करूँगा उसका कलर कौन सा होगा, रेड, और उसका यहाँ पे पैराग्राफ में जो लिखूंगा उसका कलर कौन सा होगा, ग्रीन। ये हम कर सकते हैं, और उसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे इन प्रैक्टिकल सेशन। सिमिलरली लास्ट वन दैट इज अ स्क्रिप्ट, इट डिफाइंस अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। कई बार ऐसा होता है कि हेड सेक्शन में ही, नॉर्मली मैंने फर्स्ट बोला कि भाई हेड सेक्शन में जो भी आप लिखोगे वो हमारे कंटेंट का वेब पेज जो भी बनाते हैं उसका मेन कंटेंट नहीं है। लेकिन अगर स्क्रिप्ट अगर आप यूज़ करोगे तो स्क्रिप्ट वाली चीज़ भी हम हमारे मेन कंटेंट में लिख सकते हैं, जो मैं प्रैक्टिकल सेशन में आपको दिखाऊंगा कि ऑल्दो वी आर राइटिंग दिस स्क्रिप्ट टैग इन हेड एलिमेंट, वी कैन ऑल्सो सी दिस सेम थिंग इन आवर कंटेंट। सो ओवर हियर अगेन इट इज आस्किंग के टाइप कौन सा होगा, टैब्स या जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया है वो जावास्क्रिप्ट के लिया है। जैसे ही हम अभी HTML पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम C लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके आगे अगर जब भी आप जाओ तो जावास्क्रिप्ट भी आपके सामने आएगी, तब जाके। अभी आपको जावास्क्रिप्ट क्या है क्या नहीं उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ मैं एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रिप्ट टैग का कैसे यूज होता है उसके लिए यहाँ पे प्रैक्टिकल में जब समझाऊंगा तब इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा कि ये दूसरी स्क्रिप्ट है जिसका हम हमारे HTML में कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और वो यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि स्क्रिप्ट किसके लिए, इट डिफाइंस द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। अगर कुछ है और उसको अगर दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। अपार्ट फ्रॉम दिस one other tag is there also, and that is comment. What is comment tag? It provides additional information in the HTML code. The comments are not meant to be displayed, मीन्स कि कमेंट में जो भी आप लिखेंगे वो बाहर जब भी वेब पेज लोड होगा तब नहीं दिखेगा। चाहे इस कमेंट का यूज़ आप चाहे हेड एलिमेंट में करो या इवन यू कैन यूज इन बॉडी एलिमेंट ऑल्सो। That is, no one can see the comment unless they look at the HTML source code। वो सोर्स कोड में ही रहेगा। अगर मैं एग्जांपल दूँ कि मैं सोर्स कोड लिख रहा हूँ कुछ, जैसे कि मैं सोर्स कोड कहाँ पे लिखूँगा, जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, दैट इज इन gedit, आइदर इन स्किल एडिटर, तो आइदर इन हेड एलिमेंट और इन बॉडी एलिमेंट। जहाँ पे अगर मुझे कुछ याद रखना है कि मुझे भूल ना जाए, कुछ रिमाइंड करवा दे, तो मैं इस कमेंट सेक्शन में कुछ लिख दूँ कि यार इसके लिए मैंने प्रोग्रामिंग किया है जो मुझे याद रखना, क्योंकि मैं मान लो कि मैं कुछ लंबा कोड लिख रहा हूँ, आगे जाके भूल ना जाऊँ, और उसके लिए मुझे कुछ कमेंट वहाँ पे करना है, तब जाके ये कमेंट टैग जो है वो यूज़ होता है। कमेंट टैग लिखने के लिए दिस इज अगेन एक्सक्लेमेटरी
symbol, and that is again in angular bracket. In this way you can write the comment. अगर मान लो कि ऐसे कुछ भी आप सोर्स कोड में लिखोगे तो जब भी आप अपना वेब पेज जो है लोड करोगे तो उस सेक्शन में लिखा गया जो भी चीज़ वो वेब पेज में लोड नहीं होगा. So this was all about the head section. So up till now what we have covered, that is meta tag. In that we have seen description, keyword, author and HTTP equivalent, that is base tag, style tag, link tag and script tag. तो अगेन हम रिवाइज करें तो मेटा टैग किसके लिए यूज होता है कि सबसे पहले ये जो भी टैग जो है वो हम कहाँ पे लिख सकते हैं, हेड हेड टैग के भी इन बिटवीन हम लिख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन का क्या यूज होता है कि सर हम डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखेंगे तो जब भी सर्च इंजन कुछ सर्च करेगा तो अगर आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा होगा या कीवर्ड में लिखा होगा तो उसके हिसाब से सर्च करके रिजल्ट जल्दी दे सकता है. सिमिलरली वो ऑथर के नाम के हिसाब से भी सर्च करके देता है. HTTP इक्विवेलेंट किसके लिए, तो पेज को अगर मान लो मुझे 3 सेकंड के बाद रिफ्रेश करना है, 24 घंटे के बाद रिफ्रेश करना है या 5 या 10 सेकंड के बाद रिफ्रेश करने के बाद मुझे कुछ दूसरी कोई वेबसाइट के ऊपर जाना है तो उसके लिए ये एट्रीब्यूट मेटा टैग के साथ यूज होता है. सिमिलरली बेस टैग के लिए मेरा कौन सा एग्जांपल याद रखना कि कई सारी चीज़ें आपको एक ही पाथ से एक ही जगह से लोड करना है तो हर बार वो पाथ नहीं लिखना पड़े उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है, बेस टैग. सिमिलरली स्टाइल टैग के पूरे पेज के लिए अगर पहले से प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल रखनी है तो आप स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं. लिंक टैग किसके लिए यूज़ करेंगे, जब भी कोई दूसरी एक फाइल जो है उसका यूज़ हमें हमारी फाइल में करना है तो उसके लिए दैट इज लिंक टैग यूज़ कर सकते हैं. फाइनल दैट इज स्क्रिप्ट टैग के जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखा है कि जावा स्क्रिप्ट है कि जावा स्क्रिप्ट है तो उसके सिंटेक्स में उसके लिखने के तौर तरीके डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू HTML. जैसे कि HTML में कुछ भी लिखना है तो नॉर्मली हम किस में लिखते हैं, एंगुलर ब्रैकेट में. तो जावा स्क्रिप्ट के लेके भी सिंटेक्स कुछ डिफरेंट हो गए लेकिन फिर भी उस स्क्रिप्ट का यूज़ अगर हमें हमारे कोड में करना है तो आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेड सेक्शन. नाउ वी विल स्टार्ट बॉडी सेक्शन. ओके, सो अगेन दिस इज बेसिक HTML पेज स्ट्रक्चर. अब तक जो भी हमने देखा वो हेड एलिमेंट के लिए देखा कि हेड सेक्शन में गए जो हेड टैग है उसके बीच में कौन सी चीज़ें हम लिख सकते हैं तो कौन सी देखी, टाइटल, उसके बाद मेटा में अगेन डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स एंड ऑथर एंड HTTP इक्विवेलेंट. उसके अलावा भी कौन सा यूज़ कर सकते हैं, दैट इज बेस टैग, स्टाइल टैग, लिंक टैग एंड स्क्रिप्ट टैग. नाउ वी विल मूव और फोकस टुवर्ड्स बॉडी एलिमेंट के. बॉडी एलिमेंट में कौन सी चीज़ें हम लिख सकते हैं, कौन से टैग एंड कौन से एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं. बॉडी एलिमेंट में जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे देखो, ये जो टाइटल के लिए मैंने सिर्फ दिखाया था कि सारी चीज़ें क्या कंटेंट मीन्स कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें आपको चाहिए तो उसके लिए आप कहाँ पे उसके लिए कोडिंग करोगे तो बॉडी टैग के इन बिटवीन दूसरे टैग यूज़ करके आप कर सकते हो. तो वही दूसरे टैग कौन से है, कौन से एट्रीब्यूट है वो हम यहाँ पे देखेंगे. So let us start a second section, that is body section. The body section of an HTML document is written between opening body tag and closing body tags. Over here you can see you can write the content over here in between opening and closing body tag. The HTML body element acts as a container of the items which have to be displayed within a browser. इसका मीनिंग क्या, अगर आप इन बिटवीन अगर बॉडी के बीच में जो भी यहाँ पे जो भी टैग का यूज करके कुछ लिखेंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट में कंटेंट जो वेब पेज जो बनाएंगे वो कंटेंट में आ सकता है. हाँ, अब ऐसा नहीं कि लाइक जो भी लिखेंगे अगर हम कमेंट लिखेंगे तो कमेंट नहीं आएंगे, लेकिन जो हमारे लिए वेब पेज बनाने में के लिए जो भी चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए उसके लिए हमें कहाँ पे लिखना पड़ेगा, बॉडी टैग के बीच में ही लिखना पड़ेगा. In previous chapter we have seen some text related to the heading. हाँ, हमने देखे थे हेडिंग के लिए H1 to H6. पैराग्राफ देखे थे, that is in angular bracket P लिखना है. फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए भी टेक्स्ट अगर करना है तो उसके लिए भी कई सारे that is बोल्ड, इंक्लाइन, अंडरलाइन, ऐसे कई सारे हमने टैग ऑलरेडी यूज किए हैं. एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट that can appear in a body section.
These tags usually require some content between them. Yes, कि वो ऐसे अकेले नहीं यूज होते कि जैसे कि मुझे बी लिखना है तो एंगुलर ब्रैकेट में मैं बी लिखूंगा, लेकिन उसके बीच में अगर कोई वर्ड लिखूंगा तो वो वर्ड को बोल्ड करके देगा। अगर मैं दो एंगुलर ब्रैकेट जो है दैट इज अगर मैं आई टैग का यूज करूँ दैट इज इटालिक, और उसके बीच में ओपनिंग आई टैग एंड क्लोजिंग आई टैग के बीच में अगर मैं कोई कंटेंट लिखूंगा तो वो कंटेंट को इटालिक फॉन्ट में मुझे देगा। तो ऐसा ही और कुछ दूसरा भी है दैट इज एम्प्टी टैग, उसके बारे में भी हमने देखा था कि देयर आर सम टैग्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी कंटेंट एंड हेंस आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। और हमने ब्रेक के लिए कि जो कि अगर लाइन ब्रेक करना है तो अगर मान लो कि आपको एंटर ही देना है तो अगर ये बी आर करके जो है जो एम्प्टी टैग हम जिसको कहते हैं अगर वो यूज करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में हमारा कंटेंट जो है अगर लाना है तो ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ब्रेक। Now we will start in body section background image कि बॉडी टैग जो है बॉडी टैग में ही अगर मान लो कि आपको जो एक कंटेंट वेब पेज बनाना है तो उसमें बैकग्राउंड इमेज डालना है तो वो कैसे डालेंगे, चलो देखते हैं वन बाय वन। बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या बोला है, टू प्रेजेंट द कंटेंट ऑन डेकोरेटिव एंड कलरफुल बैकग्राउंड वी कैन यूज द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट विद बॉडी टैग। तो यहाँ पे टैग कौन सा है, दिस इज बॉडी टैग। हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, बैकग्राउंड, और यहाँ पे जो वैल्यू के जगह पे हमने क्या लिखा है, रेनबो डॉट जेपीजी। सो दिस इज द नेम ऑफ द फाइल। मान लो कि मैंने मेरे कंप्यूटर में रेनबो डॉट जेपीजी करके कोई फाइल पिक्चर को सेव किया है और उसको मैं जो भी वेब पेज बनाना चाहता हूँ उसमें एज अ बैकग्राउंड के तौर पे यूज करना है तो आप बॉडी टैग में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करके उसको बैकग्राउंड इमेज के तौर पे अपने वेब पेज के हम बैकग्राउंड इमेज के तौर पे यूज कर सकते हैं। Here the term background is an attribute जो मैं समझा के गया। The attribute has to be provided with value। तो वैल्यू का क्या लिखिए, rainbow.jpg। This value is a name of a file, normally an image file। नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा, बैकग्राउंड में तो इमेज फाइल आएगी that we want to display as background। In our case it is rainbow.jpg। We can provide any valid image formats like jpg। jpg का फुल फॉर्म क्या होगा, it is joint photographic expert group, bmp that is bitmap, png that is portable network graphics and tiff। ये सारे इमेज के फाइल फॉर्मेट है, that is stacked image फाइल फॉर्मेट। कोई भी फाइल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मूविंग फर्दर in body section, many times the background image is much more attractive than its content। We must take care that the background image must not take reader's focus from the content। इसका मीनिंग क्या कि कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मली वेब पेज किसके लिए बनाते हैं कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी उसको सर्च कर रहा है उसके बारे में उसको मिल सके, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैकग्राउंड हम ऐसा रख देते हैं कि जो उसके ऊपर लिखा हुआ कंटेंट जो है हम पढ़ ही नहीं पाते। तो उसके हिसाब से हमें बैकग्राउंड इमेज या बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना चाहिए। The background image must be sober and adding an appeal to the content instead of overriding it। Further, if the background image is too big, it may require lot of time to load the page in the browser। इसका मीनिंग क्या कि अगर आप स्क्रीन की साइज से उससे भी अगर कोई बड़ी इमेज ले रहे हो तो जब भी आप लोड कर रहे हो अपने कोड को उसी टाइम उसको लोड होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। Note that if the image used for the background is smaller in size than the screen size, the image may be replicated until it fills the entire screen। इसका मीनिंग क्या, अगर स्क्रीन की साइज से जो आप इमेज लोड कर रहे हो उसकी साइज छोटी है तो क्या होगा कि जब तक पूरी स्क्रीन ना हो जाए तब तक वो रिपीट होती रहेगी। सपोज कई बार आप लोड तो एक ही इमेज करेंगे लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो 5, 10, 15 इमेज आपको देखने को मिलेगी। जनरली द बैकग्राउंड इमेज विल स्क्रॉल व्हेन यू स्क्रॉल डाउन द पेज अनलेस यू हैव सेट इट टू बी फिक्स्ड एज फॉलो। तो नॉर्मली क्या होता है, एक बैकग्राउंड होता है उसके ऊपर हमने जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो जो बैकग्राउंड है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है और उसके ऊपर जो लिखावट है वो भी ऊपर नीचे हो रही है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बैकग्राउंड इमेज है वो स्टेबल रहती है और उसके ऊपर जो हमने लिखावट की है वही ऊपर नीचे जा रही है। तो अगर उसको स्टेबल करना है तो उसके लिए ये आप यूज कर सकते हो, बीजी प्रॉपर्टीज नाम का एट्रीब्यूट्स आप यूज कर सकते हो। नाउ सेकंड थिंग इज बैकग्राउंड कलर। We can make the web page attractive by using background color instead of using a background image. Consider if we want a background with yellow color, following tag will work. So suppose आप बैकग्राउंड इमेज नहीं लोड करवाना चाहते लेकिन बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए, तो उसके लिए आप बॉडी जो टैग है उसी के साथ एट्रीब्यूट बीजी कलर यूज कर सकते हैं। अब तक हमने कौन से एट्रीब्यूट देखे, दैट इज बैकग्राउंड एंड बीजी प्रॉपर्टीज। ओवर हियर वी आर यूजिंग बीजी कलर, और बीजी कलर के साथ यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज क्या हुआ, हैश लिखा हुआ है और उसके बाद FF00। अब ये चीज़ क्या है वो ये 2 लाइन खत्म होने के बाद ही मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है और कैसे उन लोगों ने लिखा है, अगेन हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो है, हियर बीजी कलर इज एन एट्रीब्यूट डिफाइनिंग बैकग्राउंड कलर, यस, एंड नोट दैट वी कैन ऑल्सो सेट बोथ बैकग्राउंड इमेज एंड कलर टुगेदर एज शोन। इसका मीनिंग क्या, बॉडी टैग के अंदर बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के ज़रिए हम कोई एक इमेज बैकग्राउंड में लोड कर सकते हैं और बीजी कलर का यूज़ करके हम कोई कलर जो है वो हम बैकग्राउंड में लोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 चीज़ आ रही है, बैकग्राउंड इमेज भी कर रहे हैं तो, और दूसरी चीज़ क्या, बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों चीज़ साथ में दिखाई देगी। हाँ, जब तक इमेज लोड हो तब तक ये कलर रहेगा और जैसे ही वो इमेज लोड हो जाएगी ये कलर हम नहीं लिख सकेंगे। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन सच केसेस द बैकग्राउंड कलर विल बी डिस्प्लेड till image is completely loaded in the browser. This effect will be generally visible on slow computers. On fast computers, we may not be able to see any effect. So nowadays, computers are much more faster than the old days computers. So पहले ऐसा था कि भाई जब तक वो नहीं कोई इमेज लोड हो तब तक वो बैकग्राउंड का कलर दिखा दे रहा था, जैसे ही वो इमेज लोड हो जाए वो डिसअपीयर हो जाता है, जैसे कि बैकग्राउंड में चला जाता है। देन अब जो चीज़ यहाँ पे मैंने बोला था कि ये कैसे लिखा है तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि अगर आपको पता होगा कि इन एनी कलर इन एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच एज द टेलीविजन एंड कंप्यूटर स्क्रीन is considered as a combination of three basic colors, namely red, green and blue। इसके जो भी कोई भी कलर है तो मेन किन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, एंड दे आर आल्सो एक्रोनिम एज RGB, और उसको शॉर्ट फॉर्म में RGB, दैट इज R stands for red, G stands for green and similarly for blue। Recall in your childhood you were mixing 2 or more colors to get a new color, okay, often you may have mixed blue and red colors to get the purple color। इसका मीनिंग कि अगर रेड और ब्लू को हम मिक्स करेंगे तो पर्पल हो सकता है, सही ना। तो कलर्स इन कंप्यूटर्स आर कोडेड एज डिग्री फ्रॉम 00 टू FF इन हेक्साडेसिमल, ओके। अगर हम जो भी हम मान लो कि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स कौन सी सिस्टम में पढ़ रहे हैं, दैट इज डेसिमल सिस्टम में। और डेसिमल सिस्टम में हम कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो दैट इज हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में टोटल कितनी चीज़ होनी चाहिए, 15, 0 से लेके 9 और उसके बाद अगेन ABCDEF। सो 0 से लेके F तक की उसकी रेंज होती है। और यहाँ पे डबल डिजिट की बात करें तो 00 से लेके F तक एक कोई भी कलर को रिप्रेजेंट करना है तो आप कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 कलर है, कौन से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो रेड के लिए 00 से FF तक की रेंज, सिमिलरली फॉर ग्रीन वी विल हैव द रेंज फ्रॉम 00 टू FF एंड सिमिलरली फॉर द ब्लू। Hence, to represent a color, we need to build a code representing some red, some green and some blue color, making it 6-digit code। जैसे कि मैंने बोला कि हेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें 0 से F तक और एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिजिट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेकिन 00 से लेके FF, तो 3 कलर के लिए टोटल 6 डिजिट चाहिए। सो नाउ आपके माइंड में थोड़ा क्लियर होता होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो डिजिट हैं वो किसके लिए, ये 2 जो हो वो किसके लिए हो गए, रेड के लिए, अगेन जो 2 हो गए वो ग्रीन के लिए, एंड लास्ट वन दैट इज ब्लू के लिए, दैट इज RGB। अगेन आगे पढ़े तो दैट इज
2 डिजिट फॉर ईच कलर, जो मैं आपको बता के गया है। द स्ट्रिंग दैट डिफाइंस द रेड कलर इज, अब मान लो कि मुझे रेड ही कलर दिखाना है, तो बाकी के दोनों को जीरो कर दो, तो क्या होगा एफ एफ, एफ एफ दैट इज रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एंड 00 दैट इज द लोएस्ट डिग्री। सो अगर मुझे रेड कलर ही दिखाना है तो मैं कौन सा कोड लिखूंगा, 00 FF 0000। Here the red color is assigned value FF, hex equivalent of decimal value 255। अगर मैं FF का डेसिमल में कन्वर्जन करूँ तो उस FF का कन्वर्जन क्या होता है डेसिमल में, 255। ग्रीन इज असाइन अ वैल्यू 00, देखो यहाँ पे ग्रीन के लिए मैंने 00 लिखा है, एंड ब्लू इज असाइन अ वैल्यू 00, यहाँ पे 0 लिखा है। All these three sets of digits have ranges from 00 to FF, that is 00 to 255। इसके पहले जो डिजिट है वो भी 00 से लेके 255 तक जाते हैं, यहाँ पे भी 00 से लेके 255 तक जाते हैं, लास्ट वन में भी 00 से लेके 255 तक जाते हैं, मेकिंग टोटल ऑफ 256 वैल्यू। मीन्स कि अगर 0 को भी कंसिडर करेंगे 0 से लेके 255, तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गए, 256। और 256 किसके लिए, रेड के लिए भी 256, ग्रीन के लिए भी 256 एंड अगेन ब्लू के लिए भी 256। तो अगर देखा जाए द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255 gives more than 16 million different colors, means 255, 256 cross 256 cross 256। By mentioning color string in hexadecimal format, we can specify various colors। इसका मीनिंग यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं 1 2 लिखूँ, यहाँ पे 3 4 लिखूँ, यहाँ पे ई एफ लिखूँ, तो भी कोई ना कोई कलर आपके सामने आएगा। मीन्स कि यहाँ पे आप 0 से लेके एफ तक कोई भी चीज़ों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके कोई भी कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे उन लोगों ने वही बताया है कि बॉडी में बीजी कलर जो है वहाँ पे आप ऐसा कोड यूज़ कर सकते हो, और हेक्साडेसिमल है, यहाँ पे हैशटैग लगाया गया है। सिमिलरली बॉडी में बैकग्राउंड है, अब देखो बैकग्राउंड कलर और बीजी कलर दोनों। अब बैकग्राउंड में तो आप कोई भी इमेज लोड करोगे, लेकिन बीजी कलर में एक तो ऐसा कोड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली कलर का नाम भी लिख सकते हो, जो यहाँ पे बताया गया है। दैट इज यहाँ पे वी आर यूजिंग ग्रीन कलर। सिमिलरली यहाँ पे भी कौन सा कलर यूज़ किया जा रहा है, चॉकलेट कलर। ये भी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि भाई मान लो कि मजेंटा के लिए या ब्लैक के या येलो के लिए कौन सा कलर कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जितने भी दिए हैं कम से कम मिनिमम उतने याद रखो तो सही है। दैट इज फॉर मजेंटा, दैट इज अगेन पिंक भी कह सकते हैं, FF00 FF, दैट इज RGB, यहाँ पे R की वैल्यू दैट इज FF और B, रेड और ब्लू को मिक्स करके पिंक आता है, जो ऑलरेडी हमने देखा भी है। सिमिलरली फॉर येलो तो रेड एंड ग्रीन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, येलो। सो दिस इज द कलर कोडिंग। नाउ यू के कलर कोडिंग ओके। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो दैट इज बॉडी, बीजी कलर, और यहाँ पे ये 6 डिजिट कैसे आए वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कलर कोडिंग। मूविंग फर्दर, टेक्स्ट कलर। अब तक हमने क्या देखा कि बॉडी सेक्शन में बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स देखा, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स में अगेन दूसरा भी बैकग्राउंड कलर भी देख लिया। अब उसी में टेक्स्ट का कलर, अब तक हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे टेक्स्ट कलर की। वी कैन ऑल्सो डिफाइन टेक्स्ट कलर विथ एट्रीब्यूट टेक्स्ट अलोंग विथ द बॉडी टैग। बॉडी टैग में ही बैकग्राउंड कलर तो देख लिया, लेकिन टेक्स्ट का भी कलर हम इसी हिसाब से 6 डिजिट में दे सकते हैं। The use of text attribute with the value FF0000 will set the text color as red। Done। क्योंकि यहाँ पे देखो सारी चीज़ 0 दिखाई है, लेकिन यहाँ पे रेड में FF ही है, तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है, रेड। सपोज यू वांट टू सेट बैकग्राउंड कलर एज पिंक एंड टेक्स्ट कलर टू बी येलो, यू कैन डू दिस इन सिंगल इंस्ट्रक्शन। मान लो कि बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए हमें, पिंक चाहिए, तो FF00FF वो इससे क्या बनता है, बैकग्राउंड का बन जाता है। और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कौन सा रहता है, येलो। के रेड और ग्रीन का मिक्स करोगे तो आपको टेक्स्ट का कलर येलो मिल जाएगा, और रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा, मजेंटा, दैट इज पिंक कलर। तो बैकग्राउंड कलर भी मिल गया और टेक्स्ट का कलर भी यहाँ पे मिल सकता है। डन। नेक्स्ट इज लिंक कलर। Generally, you might have seen a blue colored text pointing to different locations or pages within a web page being displayed. When such a text is clicked, it takes you to another page or resource. Or when you come back to the original page, you might observe that the color of this text changes. अब इसके लिए एग्जाम्पल तो हाइपरलिंक।
अगर मान लो कोई हाइपरलिंक आपने दी है, वेब पेज आपने लोड कर दिया है, तो वेब पेज जब भी आपको हाइपरलिंक दिखेंगी उसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे कि नॉर्मल क्या होता है कि ब्लू कलर की दिखाई देती है, उसके ऊपर क्लिक करोगे नया पेज ओपन हो जाता है। लेकिन अगेन जहाँ पे हमने क्लिक किया वहीं पे अगेन हम आते हैं तो वहाँ पे उसका कलर चेंज होकर लाइट पिंक या पर्पल जैसा हो जाता है, और उसके बारे में ही यहाँ पे बात हो रही है। आगे देखते हैं क्या है। एज यू हैव विजिटेड द लिंक, जैसे कि मैं समझा के गया, इट इज आइडेंटिफाइड बाय द वेब पेज एज अ विजिटेड लिंक। मैंने क्लिक कर दिया, नया पेज ओपन हो गया, उसको देख लिया, दैट इज मैंने विजिट कर दी उस लिंक की, और उसको क्या बोला जाता है, विजिटेड लिंक। सच अ विजिटेड लिंक इज आइडेंटिफाइड एज वी लिंक, while the link that is being visited means कि जो हम विजिट करने वाले हैं is called an active link. Active link is identified as a link. तो विजिट जो हो गई है दैट इज वी लिंक, और जो एक्टिव रहती है दैट इज ए लिंक। टू डिस्टिंग्विश विजिटेड लिंक्स एंड एक्टिव लिंक्स डिफरेंट कलर्स आर यूज, और वो डिफरेंट कलर को भी आप बॉडी टैग में ए लिंक और वी लिंक एट्रीब्यूट के साथ आप अलग अलग कलर पहले से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 00FF00 इट इज RGB, तो यहाँ पे ए लिंक एक्टिव लिंक क्या होगी, ग्रीन कलर की होगी, वी लिंक की कैसे दिखेगी आपको, रेड कलर की। और सिमिलरली इसकी जगह पे आप डायरेक्टली भी कलर का नाम भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि इसके साथ हैशटैग यूज हो रहा है। डन। सो नाउ नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। The HR element displays a horizontal line across the page. कई बार ऐसा होता है कि हम 2 या 4 चीजें लिखते हैं और बीच में कुछ ब्रेक चाहिए। अब BR जो है उससे हमें ब्रेक मिलता है लेकिन कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। अगर हम HR टैग यूज करेंगे तो उससे एक बीच में लाइन आ जाएगी, जिसके जरिए हम अलग अलग, मान लो 3 या 4 पार्ट है तो चारों पार्ट को अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको बीच में कुछ लाइन लानी है तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। इट इज एन एम्प्टी एलिमेंट लाइक BR, जैसे कि BR भी एम्प्टी एलिमेंट है, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन भी एम्प्टी एलिमेंट है। दिस इज यूज्ड टू सेपरेट कंटेंट बाय ब्रेकिंग इनटू सेक्शंस। इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रूल, मींस कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल रूल भी कहा जाता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन में भी कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या है, साइज। तो साइज मीन्स के किसकी साइज, लाइन की साइज के बारे में ही बात हो रही है। डिफाइंस द थिकनेस ऑफ द लाइन, मीन्स के इसकी थिकनेस कैसे हम डिसाइड करेंगे, एट्रीब्यूट कौन सा, अगर थिकनेस कितनी थिक चाहिए वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो यू में यूज द पिक्सल साइज 3, 5 और इवन 10। ये हम पिक्सल की साइज, मीन्स के साइज जो है वो किस में मेजर की जाती है, पिक्सल में, और ये वैल्यू हम दे सकते हैं जब भी आप HR टैग लिखो तब। कलर मीन्स की जो लाइन है, लाइन का कलर कौन सा होना चाहिए। It defines the line color in Explorer such as Mozilla Firefox. The line color must be defined in hexadecimal. कलर जो है वो हेक्साडेसिमल में कलर कौन सा होना चाहिए, जो हम अभी कोडिंग देख के गए उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। विड्थ अब पूरी स्क्रीन पे आनी चाहिए, सेंटर में ही आनी चाहिए, इसके वो मेजर करना है तो क्या जरूर इसके क्या आपको करना पड़ेगा, दैट इज विड्थ। डिफाइंस द लेंथ ऑफ द लाइन। The length can also be defined as in percentage. अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर मान लो कि आपको आधी स्क्रीन पे तो आप 100% की जगह पे 50% लिखो, क्योंकि ये परसेंटेज में मेजर होती है। क्या बारे में बात कर रहे हैं, विड्थ के बारे में। The default value of the width is 100%। इसका मीनिंग अगर आप विड्थ मेंशन नहीं करोगे तो वो पूरी स्क्रीन पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। अगर आप 50% करोगे तो क्या होगा, वो आधे में मीन्स के आधी स्क्रीन के ऊपर ही वो लाइन दिखाई देगी। अब अलाइन, अब मान लो कि आधी करके 50% करके भी आप अलाइन कर सकते हो, आइदर लेफ्ट, आइदर सेंटर और आइदर राइट। अलाइन एट्रीब्यूट हम देख के आए हैं और दिस इज यूनिवर्सल एट्रीब्यूट जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। डिफाइंस अलाइनमेंट ऑफ लाइन इन राइट, लेफ्ट और सेंटर मैनर। एंड लास्ट वन दैट इज नो शेड, डिस्प्ले अ सॉलिड प्लेन लाइन इंस्टेड ऑफ शेडेड लाइन। अगर आप नो शेड लिखते हो तो आपको वो शेड लाइन का नहीं दिखाई देगा और सिंपल प्लेन लाइन दिखाई देगी। और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, इफ द यूजर वांट्स टू डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल रूल ऑफ साइज 2, और वो 2 किस में होगा, पिक्सल में, दैट यूजेस ओनली 25% ऑफ द स्क्रीन साइज। इसका मीनिंग पूरी जो स्क्रीन साइज है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 25% दैट इज द 4th पार्ट ऑफ द फुल स्क्रीन, एंड इज अलाइन टू द राइट साइड ऑफ द
स्क्रीन, देन द फॉलोइंग टैग कैन बी यूज। तो एचआर टैग यूज किया है, साइज जो है 2 है, 2 पिक्सल, विड्थ कितनी रखी है 25%, अलाइन क्या है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड 25% जितना ही उसकी उसकी विड्थ होगी और उसकी साइज कितनी होगी 2 पिक्सल होगी। लाइक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बीच में लानी है तब एच आर दैट इज हॉरिजॉन्टल रूल या हॉरिजॉन्टल लाइन जो टैग है वो यूज होता है, जो यहाँ पे कहा गया है। नोट दैट इन HTML क्लोजिंग of HR tag is not compulsory. In addition to the above argument, we can also fill the horizontal line with some images embedded this line into a valid HTML code and view it in the browser, वो भी हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में इतना ही कहूँगा कि जब भी आपको कुछ चीज़ें सेपरेट करनी है, अगर आपको लाइन चल कुछ इसके बीच में लानी है तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन जो टैग है उसका आप यूज़ कर सकते हो। Next, in the body section, we will see what is formatting characters. Formatting character में हम दो चीज पढ़ेंगे, that is first one is physical style tag and second one is logical style tag. Physical style tag हम already पढ़ चुके हैं, लेकिन again quick revise करते हैं. In the previous chapter we have seen that how the text can be made bold. bold के बारे में हमने पढ़ा है. Similarly for italics and underline. When we physically indicate the formatting style, देखो हम physically मीन्स कि हमें चाहिए कि हमें ऐसा ही आपको करना है. जब भी आप कोड करते हो, अगर आपको कोई एक वर्ड बोल्ड चाहिए तो उसके आगे पीछे आप कौन सा टैग यूज करते हो, बी एंगुलर ब्रैकेट में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. तो वो हम पहले से ही बोल देते हैं कि फिजिकली हम वहां पे हम कोड में लिखते हैं कि हमें ऐसा चाहिए, तो उसके लिए उसको क्या बोला गया है, फिजिकल स्टाइल टैग. द ब्राउजर विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली एंड पब्लिशेस द कंटेंट इन द सेड मैनर. सच टैग्स आर नोन एज फिजिकल स्टाइल टैग. मींस के फिजिकल स्टाइल टैग कैसे बोला जाता है कि हम जब भी कोडिंग करते हैं तभी उसके अंदर जब सोर्स कोड है उसमें बोल देते हैं कि ये मुझे इटालिक चाहिए, ये मुझे बोल्ड चाहिए, ये मुझे अंडरलाइन चाहिए, तो उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल स्टाइल टैग. ये सारा टैग हम चैप्टर नंबर 1 में स्टडी कर चुके हैं. दैट इज फर्स्ट क्या है, डिस्प्ले द कंटेंट इन द बोल्ड फॉन्ट. दूसरा जो है वो कंटेंट इन इटालिक्स. तीसरा जो है दैट इज स्ट्राइक थ्रू, एक कोई वर्ड है उसके ऊपर अगर मान लो एक लाइन आ रही है, वो भी हमने पढ़ा था. सुपरस्क्रिप्ट दैट इज एक्स स्क्वायर, सबस्क्रिप्ट दैट इज x2, सही ना. दैट इज टाइपराइटर फॉन्ट अगर चाहिए तो उसके लिए ये, और अगर अंडरलाइन कोई वर्ड के नीचे चाहिए तो आप यू, ये सारे टैग कर सकते हैं. टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जो फिजिकल स्टाइल टैग बोला जाता है. नेक्स्ट इज लॉजिकल स्टाइल टैग्स. It also comes in formatting characters. Instead of physically mentioning the formatting instruction in the browser, we just have to tell the browser what we want. Tags that manage such formatting are known as logical style tags. अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दूँ तो फिजिकल टैग जैसे कि मैं कहीं पे सफ़र कर रहा हूँ, मैं कहीं पे जा रहा हूँ, और फॉर एन एग्जाम्पल आई एम इन ट्रेन, और ट्रेन में मैं बैठा हूँ, मेरे सामने कोई बंदा बैठा है, उसके पास कोई पानी की बॉटल है, तो अगर फिजिकल स्टाइल टैग अगर हो रहा है, उसको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ. तो कैसे कि मैं उसके पास पानी की बॉटल है और मैं अगर पानी मांग रहा हूँ उससे, तो यहाँ पे मैं पहले पूछूंगा कि अगर आपके पास वो पानी है तो मैं पी सकता हूँ. और दूसरे में क्या है, दैट इज अ लॉजिकल स्टाइल टैग, डायरेक्ट उसकी बॉटल लेके मैं पी रहा हूँ. इसका मीनिंग क्या है कि स्टाइल टैग न कहते हुए भी सब कुछ करना, मुझे ऐसा लगता है दैट इज लॉजिकल स्टाइल टैग, कि आपको वही चीज़ करवानी है. इसका हम एग्जैक्ट एग्जाम्पल जब हम प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे तब, कि कई बार आप देखोगे कि अब इटालिक देखोगे और बोल्ड देखोगे, और वही चीज़ यहाँ पे एम्फसाइज एंड स्ट्रॉन्ग जो कोड यहाँ पे दिए गए हैं वो सभी सेम जैसे ही है, और वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में और ज़्यादा क्लियर होगी. तो अभी के लिए सिर्फ फिलहाल इतना ही रखते हैं कि ये कुछ लॉजिकल स्टाइल टैग्स है, और उसमें से भी एक तो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज डिफाइन स्पेशल टर्म टू पब्लिश द टेक्स्ट कंटेंट इन द डिफाइंड फैशन. और दूसरे सिर्फ नाम देख लेते हैं. फर्स्ट दैट इज टू गिव एम्फेसिस ऑन अ स्पेसिफिक टेक्स्ट. दैट इज मान लो कि आप इटालिक करते हैं तो थोड़ा स्पेशल है नॉर्मल टेक्स्ट से, जैसे ये आप एम्फेसाइज से कर सकते हो. तो तीसरा जो है दैट इज साइटेशन, साइट फॉर साइटिंग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट सच एज द टाइटल ऑफ द बुक्स, फिल्म्स एटसेट्रा. इसका मीनिंग क्या, कि अगर बुक्स को कोई लिख रहा है तो ऑथर का नाम इम्पोर्टेंट, लेकिन ऑथर ने जो बुक बनाई है उसका नाम इम्पोर्टेंट. सिमिलरली फिल्म, तो फिल्म के लिए डायरेक्टर का इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन उसने कौन सी फिल्म बनाई है उसको, उसके लिए कौन सा दैट इज साइट टैग यूज कर सकते हैं. उसके बाद क्या होगा, कोड.
To demonstrate computer programming code segment, the text is displayed in a fixed width font. अगर मान लो कि मुझे सी लैंग्वेज है उसका कोड जो है यहाँ पे लिखना है, तो मैं लेकिन उसके लिए मैं अगेन बोल रहा हूँ कि उसके लिए सिंटेक्स और सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। तो आप अगर आप कोड टैग यूज़ करते हो तो वो सारे सिंटेक्स आप यहाँ पे भी लिख सकोगे। एंड फाइनली दैट इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग इज सिमिलर लाइक बोल्ड, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। दिस टैग प्रिंट्स द कंटेंट इन स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज मैनर। द कंटेंट इज टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड, जो मैं बोल दिया। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 जो 5 टैग है वो क्या है, दैट इज लॉजिकल स्टाइल टैग्स। ओके, नेक्स्ट दैट इज फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग के बारे में बात करूँ कि अब तक हाँ जो हमने कलर देखा वो टेक्स्ट का देखा कि बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के ऊपर अगर टेक्स्ट का कलर चाहिए तो सिमिलरली बॉडी में अगर आपको कुछ चीज़ें अलग से, अगर मान लो कि कुछ जो भी कुछ पैराग्राफ लिख रहे हैं उसमें उसका फॉन्ट की साइज़ क्या होनी चाहिए, फॉन्ट की फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉन्ट का कलर कौन सा होना चाहिए, अगर वो आप इंडिविजुअली भी मैन्युअली भी बॉडी सेक्शन में फॉन्ट टैग का यूज़ करके कर सकते हो। इट इज़ यूज टू सेट अ स्पेसिफिक फॉन्ट एंड साइज। जैसे कि यहाँ पे अगर P है, आपको पता है कि वी आर यूजिंग पैराग्राफ टैग इन बॉडी सेक्शन, तो बॉडी सेक्शन में आप P लिखने के बाद यहाँ पे फॉन्ट लिखो, फॉन्ट के बाद फॉन्ट जो भी आप लिख रहे हो उसकी साइज क्या होगी, दैट इज 3। कलर जो है दैट इज कौन सा कलर में वो आना चाहिए, दैट इज रेड। दिस इज सम टेक्स्ट। तो ये जो दिस इज सम टेक्स्ट जो प्रिंट होगा वो उसकी साइज 3 होगी और कलर कौन सा होगा, रेड। सिमिलरली यू कैन चेंज दिस वैल्यू एंड दिस कलर वैल्यू ऑल्सो। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की है, दैट इज फेस। मीन्स के जैसे कि अलग अलग फॉन्ट की फेस होता है, जैसे कि एरियल है और टाइम्स न्यू रोमन है, तो वो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगेन आप कलर डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज सम टेक्स्ट उसके हिसाब से आता है। At the beginning of the HTML code, it is possible to decide the default font and its attributes for the page. This can be done as follows. अब कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअली लाइन के लिए, पैराग्राफ के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, लेकिन कोई ऐसा चाहता है कि नहीं मुझे इंडिविजुअल लाइन के लिए नहीं चाहिए, लेकिन पूरे पेज के लिए ये फॉन्ट का फेस होना चाहिए, ये फॉन्ट साइज होनी चाहिए, फॉन्ट का कलर होना चाहिए। तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज बेस फॉन्ट नाम का। अगर आप टैग यूज़ करोगे उसमें फेस दैट इज कौन सा, एरियल, साइज कौन सी 16, अगर कलर भी लिखोगे तो उसके हिसाब से आपका आउटपुट होगा और पूरे पेज के लिए होगा। यहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट फॉन्ट एंड इट्स एट्रीब्यूट फॉर द पेज। ओके, एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज स्पेशल कैरेक्टर। Special characters such as less than and copyright etc. can be included on the page along with and. And को क्या कहा जाता है, ampersand, as a prefix of the mnemonic code symbol of the letter. Instead of such symbol in code, we can also give the ASCII value for the symbol. ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. This is required because the characters like less than, greater than, that is angular brackets की अगर बात करें, cannot be used directly in an HTML document as they can be mixed with the text, क्योंकि वो टेक्स्ट के साथ मिक्स हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या, अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसके सामने अगर लेस देन चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बाद मुझे ग्रेटर देन चाहिए, तो मैं डायरेक्ट लेस देन और ग्रेटर देन नहीं लिख सकता, क्योंकि दैट कैन बी मिक्स विद दिस एंगुलर ब्रैकेट्स। लेकिन उसकी बजाय मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे IT है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे GT है, दैट इज और एंड है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 60 है, यहाँ पे है 62 है, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखूंगा। तो इसका आउटपुट, अगर दोनों चीज़ों का आउटपुट क्या होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद लेस देन और ग्रेटर देन नहीं आएगा। डन। और ये सारे जो कोड है, अलाइन क्या है, वो तो सेंटर के लिए है कि पैराग्राफ में अलाइन सेंटर करना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है, लेकिन उसके आगे पीछे मुझे क्या चाहिए, दिस इज LT एंड दिस इज GT, वही मुझे सिर्फ चाहिए। तो उसके लिए अलग से सिंबल और आस्की वैल्यू दी गई है, जो नेक्स्ट जो टेबल है उसमें आपको दिखा सकता हूँ कि अगर आपको सिंबल लेस देन लिखना है तो उसके लिए आप देखो LT जैसा लिखा गया है, तो उसके आप बेसिक इन्फॉर्मेशन के आगे पहले क्या लगाना है, एंड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला ही गया है कैन बी इंक्लूडेड ऑन द वेब पेज अलोंग विथ एंड। मीन्स के वो कोड के आगे आपको क्या लिखना है, एंड लिखना है, जो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि भाई लेस देन लिखना है तो आप LT तो लिखो, लेकिन उसके आगे क्या लिखो, एंड। अगर ग्रेटर देन लिखना है तो उसके आगे क्या लिखो, एंड। अगर आस्की वैल्यू लिखना है तो आस्की वैल्यू 60 है तो 60 के आगे हैश लिखो और उसके आगे एंड लिखो। अगर 60 आस्की वैल्यू अगर ग्रेटर देन के लिए 62 है तो 62 के आगे
क्या लिखो हैज़ और उसके आगे क्या लिखो एंड लिखो, वही चीज़ मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाई है, दैट इज 60 हैज़ और यहाँ पे एंड, तब जाके ये लेस देन और उसका आउटपुट अगर हम जब भी लोड करेंगे वेब पेज को और देखेंगे तो ऐसे ही सिंबल आएंगे। अगर मान लो आपको कोई सिंबल चाहिए, क्या चाहिए, फॉर एन एग्जांपल अगर कॉपीराइट चाहिए तो कॉपीराइट के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आज की वैल्यू 169 यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप एंड हैज़ 169 रखेंगे तो वहाँ पे आप जब भी लोड करोगे तो आपको क्या मिल सकता है, कॉपीराइट। सिमिलरली 1 क्वार्टर, हाफ, 3 क्वार्टर, इसके लिए सारी वैल्यू और नेमोनिक कोड जो बुक में दिए गए वो सारे आपके सामने मैंने रखे हैं। और ये भी मे बी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द ASCII वैल्यू फॉर एंड, दैट इज 32, व्हाट इज द ASCII वैल्यू फॉर द सिंबल लेस देन, दैट इज 60, व्हाट इज द ASCII वैल्यू फॉर ग्रेटर देन, दैट इज, और नेमोनिक कोड फॉर द ग्रेटर देन, दैट इज व्हाट, GT। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो थियोरी पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगेन एक बार क्विक रिवीजन करें तो अब तक हमने जो कंप्लीट किया है वो मैंने पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एंड फर्स्ट वन इज दैट इज हेड सेक्शन, एंड यहाँ पे जो बॉडी सेक्शन, अगर बॉडी सेक्शन का ही हम रिवीजन करें तो यहाँ पे बॉडी टेक में हमने बैकग्राउंड इमेज के लिए देखा, उसके बाद बैकग्राउंड कलर, देन आफ्टर टेक्स्ट कलर, लिंक में हमने ए लिंक वी लिंक दिखा, दैट इज उसके लिए मैंने हाइपर लिंक का एग्जांपल दिया था। हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी अलग अलग एट्रीब्यूट यूज होते हैं, जैसे कि उसकी साइज, उसका कलर, उसकी विड्थ, नो शेड, वो सारी चीज़ें हमने देखी। फॉर्मेटिंग कैरेक्टर में 2 चीज़ें थी, दैट इज फिजिकल स्टाइल टैग और लॉजिकल स्टाइल टैग। वो ट्रेन वाला एग्जाम्पल के एक में मांग के लेना और बिना, दूसरे में बिना मांग के उसके पास से कुछ ले लो। लास्ट वन दैट इज फॉन्ट टैग एंड बेस फॉन्ट। फॉन्ट टैग पर्टिकुलर लाइन पैराग्राफ में अगर आपको कुछ फॉन्ट की साइज या कलर चेंज करना है तो, और बेस फॉन्ट में अगर पूरे उसके जो पेज है, पेज पे जो भी सारी चीज़ें हैं वो अगर प्री डिफाइन पहले से ही करनी है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, बेस फॉन्ट। एंड फाइनली चैप्टर में जो एंड किया दैट इज व्हाट, स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर डायरेक्टली आप नहीं लेस देन ग्रेटर देन लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आइदर यू कैन यूज नेमोनिक कोड एज वेल एज ASCII वैल्यू, लेकिन उसमें भी आगे आपको क्या यूज़ करना है, एंड लगा के आपको यूज़ करना है। So this was all about the theory portion of chapter number 2, that is head and body section. So if we revise total हमने कितने टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स देखे हैं, तो अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करूँ तो ये सारे टैग चैप्टर के स्टार्टिंग में भी हमने देखे हैं, तो अराउंड दिस 10 टैग, again continue with this, that is paragraph and all this up till यस टोटल 26 टैग हम चैप्टर नंबर 1 में देखे थे। और चैप्टर 2 के बारे में बात करूँ तो नए कितने, डेट इज कमेंट के लिए दिखा, मेटा टैग, बेस, स्टाइल, लिंक, स्क्रिप्ट, HR, एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग, साइट, कोड एंड फॉन्ट, एंड लास्ट वन दैट वाज बेस फॉन्ट। तो अगेन टोटल 13। तो अगर देखा जाए तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों मिला के 26 प्लस 13 दैट इज अराउंड 39 टैग हमने स्टडी किए। यही 39 टैग का यूज करके हम प्रैक्टिकल सेशन आगे बढ़ाएंगे।